Several eyes dream of beautiful spaces they can call their own. Agrawal Construction Company takes it as a responsibility to ensure that every such pair of eyes don't just sleep with these dreams, but wake up to the reality of their own space. From luxury to royalty, from residential to commercials and plots, spaces that suits your budget and preferences. Sage Sun City at Katara Hills, Sage Heritage at E8 Extension, Sagar Green Hills at Kolar Road, Sagar Eden Garden at Hoshangabad Road, Sagar Pearl Phase 1 and Phase 2 at Hoshangabad Road, Sage Emporia Commercial, Sagar High Street Commercial. For more details, please visit our company website. It's about our children and future of our country, and we can't compromise on it. With that view, the Sage Group has launched Sage International School, first fully AC school in Bhopal. Experienced faculties to groom your child through quality education and emphasis on extracurricular activities. A one-of-a-kind school which integrates culture, foreign languages, and art in form of drama, music, dance, and karate. High-quality education imparted in CCTV secured campus, AC classroom, digital teaching, well-equipped labs and libraries, ERP system to get live updates, and GPS-enabled transportation for better security. We allow children to think independently and create their own rainbow. Hello. Hello friends, myself Dr. Nilesh Jain. आज आपका पुनः सेकंड डे थर्ड सेशन में स्वागत करते हैं। अभी 90 पार्टिसिपेंट्स हमारे आ चुके हैं। वी आर वेटिंग फॉर 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि हमने 400 लोगों ने फॉर्म भरा है और अभी 200 लोग आए हैं। 200 लोग जो आए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम को, इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं जो हमारे सेकंड वर्टिकल SGI इंदौर, मतलब सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में जो हमारी खुली है, उसमें जो मुस्कान राज, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिजाइन सेज एम्बेसडर इन इंदौर। उसने कल एक वीडियो हम लोगों को भेजा कि अबाउट सेज एम्बेसडर। अब मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अच्छा बोलते हैं, इससे और अच्छा वीडियो आप बनाकर मुझे व्हाट्सएप करें या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे भेजें। तो मैं अपना ईमेल आईडी आपको चैट बॉक्स में अभी शेयर करता हूं। जब तक आप इसका वीडियो देखें कि व्हाट दिस मुस्कान झा हैज सेड अबाउट सेज एम्बेसडर। Hello, I'm Muskan Raj and I'm the student of Design Institute, Sage University, Indore. It is a great privilege for me to be a student ambassador of my university, and I'm thankful to our respected Chancellor, Mr. Sanjeev Agrawal, HOI Mr. Sanjay Jain, HOD Mrs. Amrita Rajput, and faculty that you all have given me a big responsibility in this form of opportunity, and I'll perform my duties with honesty and dignity. So, being an ambassador, it is my sole responsibility to educate prospective students, friends, and their families about the campus, tradition, history, and achievements of our university. And admissions have opened in our university for different institutes such as design, journalism, and architecture. So, interested students can start the enrolling process. And to gain more knowledge, they can log in at www.sageuniversity.in, and aspiring students are invited to our lovely and green campus of Sage University. Regards, Muskan Raj. तो डियर फ्रेंड्स, आपने अभी एक वीडियो देखा। आप कहीं अगर, तो मैं फिर से आपको दिखा दूं एक बार व्हाट शी हैज टोल्ड अबाउट सेज एम्बेसडर एंड हाउ शी हैज अश्योर्ड दैट शी विल ट्राई टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ सेज एम्बेसडर। तो हम और आप भी यही चाह रहे हैं कि ऐसा सेज एम्बेसडर हम आपको एक हीरो वाली लुक दें, एक सेलिब्रिटी वाली लुक हम आपको देना चाह रहे हैं। जैसे आपको एक प्राउड फील हो कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ द सेज ग्रुप, द स्टूडेंट ऑफ SIRT और E और S, जिस भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, आपको एक फील आए कि हमने कुछ यहाँ पे आके हमारी पर्सनालिटी को हमने ग्रूम किया है। हम अपना एक लीडरशिप क्वालिटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे ड्यूरिंग
दिस 2-3 years, जब तक आप हमारे साथ रहेंगे, और इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश पूरी करते रहेंगे। आज हमारे बीच में मिसेस योगिता यश रावत सागर इंटरनेशनल स्कूल से हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आए और अपना सेशन स्टार्ट करें। Thank you so much, sir. Am I audible to everyone? Yes, ma'am, you are audible. All right. Thank you so much for giving this beautiful opportunity to me. And I'm very excited to be the part of this Brand Ambassador Mission 2020. And dear all, मैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एंड आई स्टार्ट जस्ट क्विकली विद अ ब्यूटीफुल शेर कि आसमां के सितारों में एक सितारा मेरा भी होगा, आसमां के सितारों में मेरा भी एक सितारा होगा, और दुनिया जहां की फरिश्तों में मेरा भी एक नाम होगा। ये एक ऐसा शेर है जो कि हर एक युवा के दिल की बात हमें समझाता है कि जो युवा होते हैं वो बेसिकली बहुत ही एम्बिशियस होते हैं एंड दे ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, एटलीस्ट इन दिस ईरा। आज के समय में जो युवा है वो बहुत ही एम्बिशियस है, और ऐसा उन्हें होना भी चाहिए, बिकॉज उनके एम्बिशियस होने के पीछे बहुत सारे सपने और बहुत सारी इच्छाएं जो उनके माता पिता की हैं, जो उनकी हैं, वो सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो उनका एस्पायरिंग होना, एम्बिशियस होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यंग फ्रेंड्स, आप लोगों का इस ब्रांड एम्बेसडर की रेस में या इस ब्रांड एम्बेसडर के मिशन में सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होगा। आज के सत्र में आप मेरे साथ उन विषय के ऊपर, उन बिंदुओं के ऊपर, हम पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप वाकई में एक सेलिब्रिटी की तरह होंगे, या आप एक सेलिब्रिटी की तरह हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। आपने बहुत सारे बड़े ब्रांड्स को देखा होगा, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन मिशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज द पोलियो मिशन ऑफ इंडिया, विच इज वेरी पॉपुलर, और उसकी टैगलाइन है दो बूंद जिंदगी की। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इस दो बूंद जिंदगी के पीछे हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो है वो एक बहुत ही बड़ा कैंपेन करते आ रहे हैं, और इस बहुत बड़े कैंपेन के कारण आज हमारे भारत के लाखों करोड़ों अरबों बच्चे पोलियो से मुक्त हैं, और माँ बाप जो है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी इस कैंपेन का बहुत ही खूबसूरती के साथ हिस्सा बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इमेजिन कीजिए कि पोलियो अभियान में अगर हम अमिताभ बच्चन की जगह किसी अनजाने चेहरे को लेते और हम उस अनजाने चेहरे के माध्यम से इस कैंपेन को प्रमोट करते, तो शायद सफलता मिलती, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी कि आज हम उसकी एक ऊंचाई देख रहे हैं कैंपेन की। द सेम वे आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर होस्ट करते हैं, जिसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है सेज के लिए एक एंडोर्समेंट के लिए अपने आप को तैयार करने का। आई एम प्रिटी एक्साइटेड कि यहाँ पर 400 से भी ज्यादा बच्चे हैं जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आपका कंपैरिजन हमने किसके साथ रखा है। हमने आपका कंपैरिजन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ में रखा हुआ है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ में। दैट मीन्स if you are selected as the brand ambassador of the Sage Group, or we can say this huge brand, तो आपके साथ हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि हम अमिताभ बच्चन जी के साथ में करते हैं। दैट मीन्स आपको वही महत्व मिलेगा, वही आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी जो सदी के महानायक को मिलती है। यानी कि हमारे हर कैंपेन में आप आगे होंगे, हर कैंपेन में हम आपको आगे रखेंगे, एल्युमिनाई मीट्स में आप आगे होंगे, हमारे सेलिब्रिटी जो गेस्ट होंगे,
हम उन सेलिब्रिटीज के लिए आपको आगे करेंगे, आपको उनको एस्कॉर्ट करने के लिए आगे रखेंगे। तो ऑल टुगेदर आप एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ये महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही बड़ा है। सेज अपने आप में एक बहुत ही जाना माना नाम है। आज अगर हम मध्य भारत की बात करते हैं तो मध्य भारत में एक ऐसा ग्रुप है जिसको कोई भी व्यक्ति बहुत इजीली रिकग्नाइज कर लेता है, एंड दैट इज सेज। सो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है मैंने आपको वो भी बताया दोस्तों, और ब्रांड एम्बेसडर की क्या भूमिका होगी वो भी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर क्यों, व्हाई वी वांट एंड व्हाई वी आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, अगर हम आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, सोच के देखिए कितनी अद्भुत बात है। किसी ने कहा है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप अलग अलग प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक पेड़ लगाइए, क्योंकि अगर आप एक पेड़ लगाएंगे उसमें 5 साल बाद फल आएगा, तो उस फल के साथ में वो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें कि लाइफ लॉन्ग का इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, तो लाइफ लॉन्ग के इन्वेस्टमेंट का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि आप लोगों को अपने जैसा बनाएं। और अगर हम अपने जैसा लोगों को बनाते जाएंगे तो एक तरीके से आप इमेजिन करिए कि आपका चेहरा, आपकी पहचान न जाने कितने लोगों तक आप मुखातिब होंगे, जिनसे मिलकर लोगों को सेज के बारे में पता चलेगा। आप इमेजिन करें, या एक उदाहरण के तौर पर लें, आप एक पार्टी में जाते हैं और आप वहां पर एक ऐसे बच्चे को देखते हैं जो कि पार्टी में सोफों के ऊपर कूद रहा है, खाना लेकर के खाना यहाँ वहां बिखेर रहा है, या फिर कहिए कि किसी से बहुत ही बेअदबी से बात कर रहा है, मैनर्स एंड एटिकेट्स फॉलो नहीं कर रहा है। आपके मुंह से अकस्मात क्या निकलेगा? आप ही कहेंगे किसका बच्चा है ये? एम आई राइट? आप कहेंगे ये किसका बच्चा है भाई? इसके विपरीत अगर आप किसी बच्चे से मिलते हैं और आप पाते हैं कि वो बच्चा बहुत ही वेल मैनर्ड है, बहुत वेल कल्चर्ड है, और वो बहुत ही अदब से आपसे बात कर रहा है, तो आप फिर यही कहेंगे, वाह, क्या मैं आपके पेरेंट्स से मिल सकता हूँ? आप बहुत ही अच्छी तालीम लिए हुए बच्चे जाने पड़ते हैं, और आपके पेरेंट्स को बधाई हो। इसी प्रकार से अगर स्टेज के बच्चे बाहर निकलते हैं एंड दे रिप्रेजेंट द ब्रांड विद अ ब्यूटीफुल वैल्यू एंड कल्चर, और आज हम इस महायज्ञ में, मैं इसे यज्ञ कहूंगी, मैं इसे हवन कहूंगी, क्योंकि इस सब में ये 400 बच्चे आहुति डालने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर इस हवन की आहुति से, इस अग्नि से आपके अंदर एक ऐसी आग पैदा होती है, और उस आग की गर्माहट को एक मशाल के तौर पर जब कल आप बाहर निकलते हैं, लोग आप में देखकर कह पड़े कि साहब आप कहाँ पड़े हुए हैं, जनाब आप कहाँ से आए हैं, और अकस्मात आपके मुंह से निकल जाए, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी और द सेज ग्रुप भोपाल और इंदौर। हाउ वंडरफुल इट विल बी डेफिनेटली सो वंडरफुल टू हियर कि कोई बच्चा अपने परिवार को, एक परिवार वो होता है जहां आप बायोलॉजिकली जन्म लेते हैं, जहां आपके माता पिता आपको जैविक रूप से जन्म देते हैं। एक परिवार वो होता है जहां आप शिक्षा लेते हैं और आप अपने ज्ञान से, अपने अंदर के एलिवेशन से, अपने अंदर के एवोल्यूशन से आप अपने आप को एलिवेट करते हैं, और आप वहां दोबारा जन्म लेते हैं। तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि इंसान का एक बार नहीं, कई बार जन्म होता है। एक बार जब वो बायोलॉजिकल पैदा होता है, बायोलॉजिकली पैदा होने के बाद एक बार जब वो स्कूल जाता है, एक बार जब वो कॉलेज जाता है, एक बार जब वो समाज को सपूत किया जाता है, और समाज को सुपुर्द करते समय कॉलेज, परिवार, माता पिता, स्कूल सभी उसकी तरफ देखते हैं कि अब आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अमिताभ बच्चन जी का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि वो अपने परिवार, अपने पिताजी के बारे में, और जहां उन्होंने पढ़ाई की है, शेरवुड स्कूल, नैनीताल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अक्सर अपने स्कूल, अपने कॉलेज की बात करते हैं। तो सेम वे अगर आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हर तरफ होगा, ये महक हर तरफ फैलेगी, और ये बनी बात है
कि कोई एक बच्चा सेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ हजारों मशाले हैं सेज की, जो पूरे विश्व भर में एक दिया जलाएंगी, एक जोत जलाएंगी। तो आज मैं आपको अगले स्टेप पर कुछ टिप्स देने जा रही हूँ, जो आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं, क्योंकि इस सत्र के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में हम अपने सेज एम्बेसडर को चुनेंगे। तो कुछ चीजें जो आपको इंटरव्यू देते समय भी और आने वाले टाइम में बाहर निकलकर लोगों से मिलते समय भी ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि एक सेजियन की या एक ब्रांड एम्बेसडर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। देखिए, पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी को एक फ्रेम नहीं दे सकते। वी कांट गिव अ फ्रेम टू अ पर्सनैलिटी, बिकॉज आप अगर उसे फ्रेम करने की बात करेंगे तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको क्विक विन सॉल्यूशन के तौर पर पर्सनैलिटी कैसे समझते हैं, इसको जल्दी से मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो पर्सनैलिटी बेसिकली हमारे नजरिए का एक शरीर है। मतलब अगर आप किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका नजरिया सबसे पहले देखा जाता है। मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर का भी सबसे पहले नजरिया देखा जाएगा। मतलब मैम, मतलब क्या होगा इसका? मतलब ये होगा कि आपका एज एन एम्बेसडर सबसे पहले एटीट्यूड चेक होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये आज के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए है। कि हंगामा करना मकसद नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए, कि हंगामा करना मकसद नहीं है कि सूरत बदलना चाहिए, कि आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो जलनी चाहिए। अगर आप सबसे पहले पर्सनालिटी कोच या पर्सनालिटी कोचिंग की बात करते हैं तो पर्सनालिटी का ए होता है एटीट्यूड से। रिमेंबर, एटीट्यूड मतलब नजरिया। आपका नजरिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, आपका नजरिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर कैसा होना चाहिए? हम आज के युवाओं को देख रहे हैं, हम ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को। हमारे युवा सोशल मीडिया पर लोगों से मिलते समय, परिवार में किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। नजरिया क्या होता है? नजरिया मैम दो प्रकार का होता है। योगिता मैम, नजरिया दो प्रकार का होता है। ठीक है बच्चे, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? मैम, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। ओह रियली? ऑनेस्टली दोस्तों, ये बहुत ही बचकाना होगा अगर आप एटीट्यूड को पॉजिटिव और नेगेटिव में ही सिर्फ सीमित कर दें। एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हम एक तीसरे आयाम पर जाएंगे और आज हम एटीट्यूड को एक नए तरीके से देखेंगे। देखिए, ये जो पर्सनल और पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड है ना, ये आपका व्यक्तिगत नजरिया है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, हो सकता है कि आपका किसी से जमती ना हो, आपकी किसी से जमती ना हो, ओके। प्रोबेबली आपको कोई चीज अच्छी ना लगती हो, ठीक है, और आप उसके प्रति कैसे होंगे? नेगेटिव एटीट्यूड के, ठीक है। लेकिन अब आप क्या बनने जा रहे हैं? अब आप बनने जा रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव हमेशा नहीं रह सकता। अगर वो कहे कि आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, तो शायद ये झूठ होगा। तो अब अगर हम सेज एम्बेसडर के एटीट्यूड की बात करें तो दोस्तों, आज सेज एम्बेसडर इस बात को गांठ बांध लें कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव से एक कदम आगे जाएगा और वो एक नए लेवल पर अपने आप को डिस्कवर करेंगे। दैट इज द एटीट्यूड that we look for in the brand ambassador is three types. Okay, the attitude that we look for the brand ambassador are of three types. That is the professional attitude. First that we say is the aggressive attitude. अगर आप क्रोध करते हैं, अगर आप अपने शब्दों की गरिमा को भूल जाते हैं, तो आप एक अग्रेसिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेंगे। नंबर टू, आप डिफेंसिव हो सकते हैं, जिसमें आप कदम को पीछे ले रहे हैं और आप चीजों के ऊपर स्टैंड नहीं रख रहे हैं। यू आर नॉट टेकिंग अ स्टैंड, तो दिस इज योर डिफेंसिव एटीट्यूड। नाउ नंबर थ्री, द प्रोफेशनल एटीट्यूड इज द बैलेंस्ड एटीट्यूड।
Balanced. That means the ambassador must not have an aggressive attitude or defensive attitude, or we are looking for कि हमारा ambassador balanced है. अब आप बोलेंगे मैम बैलेंस्ड क्या होता है? जल्दी से मैं बताऊंगी आपको. देखिए समय की बहुत कमी है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ इस सत्र को एक शेप में लाने की, एक आकार देने की. जब आप बैलेंस होने की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैं आज एक अच्छी सी बात बताती हूँ. देखिए, चुनाव सही और गलत में नहीं होता है. ध्यान से सुनिएगा. चुनाव सही और गलत में नहीं होता है. जीवन में चुनाव होता है सही और अच्छे में. ध्यान से सुनिए. अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं तो आपको सही या गलत में चुनाव नहीं करना है. आपको चुनाव करना है सही और अच्छे में. सही और अच्छा. ध्यान से सुनिए. अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, महाभारत से देती हूँ. आपने कर्ण का नाम सुना होगा. सूर्यपुत्र, या वो कह लीजिए दानवीर कर्ण. याद है आपको? एग्जैक्टली. कर्ण के बारे में जब आप सुनते हैं तो आपके मन में करुणा जागती है, और आपके मन में ये बात आती है कि कर्ण के साथ अच्छा नहीं हुआ. और अच्छा ये नहीं हुआ कि माता कुंती ने उसको जन्म देते ही छोड़ दिया, नदी में बहा दिया. एंड एट द सेम टाइम जब वो बड़े हुए तो उनको राजपाट भी नहीं मिला. पांडवों के द्वारा ये बहुत बाद में जानकारी मिली कि कर्ण जो है वो उनके बड़े भाई हैं. कर्ण का अगर हम एक स्केच बनाते हैं तो कर्ण बहुत अच्छे थे, कर्ण दानी थे, और अंत में उनका वध भी इसी दान के कारण हुआ कि कर्ण को अच्छे के लिए ये कीमत चुकानी पड़ी कि ब्राह्मण रूप में आने के बाद भगवान ने उनसे उनका कवच मांग लिया और अच्छे कर्ण ने उसको दे दिया. तो आप बोलेंगे मैम फिर पांडव क्या हुए? पांडव बुरे हुए? ध्यान दीजिए. कर्ण अच्छे थे लेकिन पांडव सही थे. ध्यान दीजिए. सोशल मीडिया पर, समाज में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी जो अच्छी हैं, लेकिन आपको उन अच्छी चीजों का चयन ना करते हुए सही चीज का चयन करना है. एग्जाम्पल लेते हैं. आपको अच्छा लग रहा है कि आप जल्दी से लिफ्ट लेकर के ऊपर चले जाएं, या आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने खड़े हुए सीनियर, जो कि आपके कॉलेज सीनियर कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कोई गेस्ट भी हो सकते हैं, उनको लिफ्ट में पहले जाने देना ये सही है. आपका जाना अच्छा लगेगा लेकिन उनको जाने देना सही है. दैट मीन्स एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपकी पर्सनैलिटी का एटीट्यूड बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए. और संतुलित होने का मतलब है सही का चुनाव. अच्छे के ऊपर सही का चुनाव. दैट मीन्स Sagians are not choosing good. The Sagians are choosing the right. This is what is the philosophy. आपको as a brand ambassador सही का चुनाव करना है. अब आप बोलेंगे सही क्या है? ये मजेदार प्रश्न होगा. सही कपड़े, सही ग्रूमिंग. जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ. पिछले कुछ समय से मैं एक कैंपेन के जरिए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए लोगों का चुनाव कर रही हूँ. आप ही के जैसे यंग बच्चों का चुनाव कर रही हूँ. इंटरव्यू के दौरान बच्चे जो हैं वो ग्रूमिंग कर कर आते हैं, जिसमें कि वो ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं, हेयर स्टाइल नहीं बनाए हुए हैं, और कई सारी चीजें, जैसे उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं उनसे एक सिंपल सी बात पूछती हूँ. आई आस्क देम अ वेरी सिंपल थिंग. जस्ट लेट मी नो. आप एक दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं और सामान खरीदते हुए दुकानदार आपको एक ऐसी वस्तु पकड़ा देता है जिसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं. दैट मीन्स वो जो सामान आपने खरीदा है उसका डिब्बा साफ सुथरा नहीं है, हटा हुआ है, और उसके ऊपर की जो पॉलिथीन है या जो उसकी पैकिंग है उसका रैपर भी अच्छा नहीं है. तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आप उस सामान को खरीदना चाहेंगे? I think a lot of people will say no. Why? Because आपके मन में डाउट आएगा. आपके मन में डाउट आएगा कि ये जो इसके अंदर सामान है वो भी खराब होगा, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है वो अच्छी नहीं है.
राइट? इसी प्रकार से जब आप एज अ सेजियन लोगों से मिलते हैं तो आपका व्यवहार अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों की भाषा में अच्छे का मतलब होता है कूल, राइट? दिस इज व्हाट यू से, कूल, राइट? आप ऐसे ही बोलते हैं कूल है। सो ये कूल अच्छा हो सकता है, लेकिन कूल सही हो जरूरी नहीं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कि आपको एज अ सेजियन किस चीज का चुनाव करना है, तो आपको अच्छे का नहीं सही का चुनाव करना है। जैसे सही कपड़े, कैसे कपड़े होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए एक फॉर्मल मीटिंग में है, आप एक फॉर्मल फंक्शन में है, और उस फॉर्मल फंक्शन में आपसे मिलने के लिए कोई सेलिब्रिटी आ रही है, हमने आपको एस्कॉर्ट करने के लिए आगे किया हुआ एज एन एम्बेसडर, तो आपके कपड़े कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए या सही होने चाहिए? अगर अच्छे होने चाहिए तो फिर आप अपने हिप हैप वाले कपड़ों में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई बहुत ही अच्छे से मुझे नीचे चैट लाइन्स में लिख के भेज रहा है कि हमें फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। दिस इज सही, दिस इज सही। अगर आप अपने लो वेस्ट जीन्स एंड कूल हेयर स्टाइल में अपने आगे आ जाएंगे तो वो अच्छा होगा, लेकिन वो सही हो वो जरूरी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अच्छे और सही के बीच में फर्क करना, राइट? सही कपड़े, सही कपड़े, सही ग्रूमिंग, सही पैकेजिंग, सही इंप्रेशन। कि जिंदगी जीना आसान न समझो, कि है इसमें थोड़ी सी कलाकारी भी। कि जिंदगी जीना आसान न समझो, है इसमें थोड़ी सी कलाकारी भी। कि तुम जैसे मुझ जैसे होकर के भी जो दुनिया में बाइज्जत है। कि तुम जैसे मुझ जैसे होकर के भी जो दुनिया में बाइज्जत है। थोड़ा सा उनका सीधापन है और थोड़ी सी चालाकी भी। थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा अपने मन का हटा दीजिए, अपने मन को अच्छा लगने वाला साइड में रख दीजिए। एज अ ब्रांड एम्बेसडर सही का चुनाव करिए। कि जिंदगी जीना, कि कोई कह रहा है, एक बार फिर अर्ज करिए, कि जिंदगी जीना आसान न समझो, कि है इसमें थोड़ी कलाकारी भी। कि जिंदगी जीना आसान न समझो, कि है इसमें थोड़ी कलाकारी भी। कि तुम जैसे मुझ जैसे, कि तुम जैसे, कि तुम जैसे मुझ जैसे होकर के भी जो दुनिया में बाइज्जत है। थोड़ा सा उनका सीधापन और थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी चालाकी। जिंदगी जीने की कला, कि आप कैसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लोगों को मेस्मराइज कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू हो रहा है कैंपस का, इंटरव्यू में पूछा जा रहा है आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए। वह व्यक्ति कह रहा है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। इंटरव्यूअर पूछता है कि आप हार्ड वर्किंग है, जस्टिफाई करिए, उदाहरण दीजिए। अब बंदे के पास में तपाक से जवाब है, मैं सेज एम्बेसडर था। इमेजिन करें आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपसे आपका इंटरव्यूअर आपकी स्ट्रेंथ पूछेगा और आप ये कहेंगे कि आई वॉज अ सेज एम्बेसडर। वाओ, you were a sage ambassador. This is really cool. How? I was appointed amongst the 400 applicants. Out of 400 applicants, you were selected the brand ambassador. Wow. I trust you. I trust you because आप ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। सेज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब हमारी कंपनी में आपका स्वागत है, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये फायदे होंगे आपको अगर आप ब्रांड एम्बेसडर। This will be the benefit that you will get if you will become the brand ambassador of Sage University, the brand Sage. और सिर्फ इसके लिए आपको अच्छे में से सही का चुनाव करना, अच्छे और सही में से सही का चुनाव करना है। सही ग्रूमिंग, सही पैकेजिंग, सही कपड़े, सही भाषा। आजकल बच्चे बड़े मजे से कहते हैं पापा आप बड़े सेक्सी लग रहे हो, मम्मी क्या कमाल लग रही हो यार, पटाखा ना, मम्मी पटाखा, पापा सेक्सी। ये तो भाषा अच्छी है बट सही नहीं है। भाषा भी एक अलंकरण है, भाषा भी एक आभूषण है, और सच कहूं तो भाषा ही सब कुछ।
कि ज़बान जानवरों को दी होती, कि ज़बान जानवरों को दी होती तो कह डाला होता कि कितने सितम किए हम। भाषा की पकड़ अगर आपकी अच्छी है तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप एक, एक ऐसा इंप्रेशन लोगों के ऊपर छोड़ सकते हैं जिससे वो लोग आपको कई कई सालों तक याद रखेंगे। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि परमेश्वर ने मुझे अगर कुछ दिया है तो वो इस ज़बान के ऊपर सरस्वती, ये भाषा ही है जो आज मेरे 23 साल के करियर में जब भी मैं फोन पर किसी बच्चे से बात करती हूँ, तपाक से कहते हैं योगिता मैम, एंड मैं हमेशा उनको कहती हूँ हाउ डू यू रिमेम्बर मी, एंड जैसे वो आपकी खड़खड़ाती हुई सी आवाज और आपके बोलने का अंदाज वही हमको बताता है अरे योगिता मैम। द सेम वे एज अ ब्रांड एम्बेसडर बच्चों, अगर आप सही कपड़ों के साथ सही भाषा सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप भी एक सही इंप्रेशन लोगों के ऊपर छोड़ पाएंगे। अब आज की अंतिम बात, सही कपड़ों के साथ सही व्यवहार। अगर आप लोगों के साथ सही व्यवहार करते हैं, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ही रफ बिहेवियर, और सच कहूं तो आज मुझे मौका मिला है, मुझे बोल लेने दो दोस्तों, कि आजकल सबसे बड़ी तकलीफ है कि हम गलत को सही ठहरा रहे हैं। व्यवहार के तौर पर जिसे कूल कह करके बच्चे करते हैं, माँ बाप उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग और दोस्त भी उसे अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हमारा बिहेवियर हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ हमारा बिहेवियर हो। हम लोग इस बात को बिल्कुल फील नहीं कर रहे हैं कि हम गलत को सही ठहरा रहे हैं। अपने बिहेवियर में, अपने बैठने के अंदाज में, अपने चलने के अंदाज में आपकी एक सही की पकड़ अगर आप बनाकर चलते हैं, जैसे सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। लाइक मैं जब इंटरव्यूज लेती हूँ ना, तो मैं हमेशा फील करती हूँ बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, दे डोंट से हैव अ नाइस डे मैम, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि क्या जरूरी है ऐसा बोलना, इट रियली मैटर्स कि अगर आप बहुत ज्यादा पॉलिश नहीं हो गया, बहुत ज्यादा मक्खन बात, ऐसा नहीं है। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपसे कोई अच्छे से बात करे? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई आपको सम्मान दे? इसी प्रकार से एज अ ब्रांड एम्बेसडर हम जब सही की बात कर रहे हैं कि सही कपड़े पहनिए और सही बातचीत सही कपड़े के साथ में सही एटीट्यूड अपनाइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही कपड़े सही बातचीत के संग सही तरीके से बर्ताव करें। ये लोगों के साथ में जब आप बैलेंस क्रिएट करते हैं तो आप रियली एक ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। There is a very simple saying, don't forget the keys, don't forget the golden keys, thank you, sorry and please। जब आप ये तीन चीजें बहुत प्यार से बोलते हैं, थैंक यू, सॉरी, प्लीज, यही बहुत होता है अपने आप को एक ऐसे दायरे में लाना जहां लोग आपकी तरफ पलट कर देखते हैं कि या वाओ, देयर इज अ पर्सन हु इज अ जेंटलमैन एंड देयर इज अ यंग लेडी। ध्यान दीजिए बच्चों कि आप इस समय एक लड़के की तरह हैं या एक लड़की की तरह हैं, बट एज अ ब्रांड एम्बेसडर हम उस लड़के को जेंटलमैन में कन्वर्ट होते हुए देखना चाह रहे हैं और उस लड़की को हम एक यंग लेडी में कन्वर्ट होते हुए देखना चाह रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर हमारे बच्चे हमारा सेज फ्लैग लेकर आगे बढ़ते हैं, आप पलट कर देखिएगा कि ऐसे कई हजारों बीज हमने बो दिए होंगे जहां हर 10वां बच्चा, हर 5वां बच्चा आपको बोलेगा हेलो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम सेज, एंड यू विल फील वेरी प्राउड अबाउट इट। सो आई होप आज के इस छोटे से सत्र में हम इस बात को डिस्कस कर पाए कि सेज के ब्रांड एम्बेसडर की क्या खूबियां होना चाहिए। चलिए एक बार जल्दी से हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि सेज एक ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रहा है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव ना हो, उसका एटीट्यूड हो बैलेंस्ड। दैट मीन्स attitude A and B, A, B, that's balanced. Attitude A and B is balanced. A, B, A, B. So the sage ambassador must have a balanced attitude. अब बैलेंस एटीट्यूड में हमने बात की थी कि अच्छे को नहीं सही को पकड़ना है। तो सही का मतलब है सही ग्रूमिंग, सही मेकअप, सही हेयर स्टाइल, सही पैकेजिंग, सही कम्युनिकेशन और आखिरी में सही व्यवहार।
तो चलिए मैं हाउस को ओपन करती हूँ. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन टू आस्क मी, सो आई रिक्वेस्ट सर. एंड अंत में मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू डॉक्टर भावना मैम ऑल्सो फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. राजपूत सर फॉर ट्रस्टिंग मी. Thank you so much, sir. Thank you so much. The house is open. If anybody has any question, please go ahead. मैम इट वाज अ मार्वेलस सेशन. मतलब आपने जो 2 शब्द बोले हैं उसके लिए मैं कुछ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ. Please, sir, सागर please. में एक उमा प्रसाद यादव जी हैं, यादव बुक स्टॉल वाले. वो केवल 4th क्लास थे. बेसिकली ही वाज अ पेपर हॉकर. वो घर घर पेपर बांटते थे. वो मेरे एक दोस्त के पापा भी थे. आज की डेट में ही इज अ मिलियनेयर. तो मैंने उनसे ऐसे जस्ट पूछा कि अंकल आपने कैसे तरक्की की है. यादव बुक स्टॉल के नाम से उनकी सागर में दुकान है और उनके बच्चों की 4 स्कूल पुणे में चलती हैं. एक बच्चा विदेश में सेटल्ड है और सागर में करीब करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास है. तो मैंने जस्ट उनसे पूछा हाउ यू बिकेम अ मिलियनियर. तो उन्होंने हमसे एक ही चीज बोला था कि मैं जहाँ पेपर डालने जाता था उनका एक पहचान हो गई मिलिट्री वाले से. तो उसने मुझे बोला केवल जिंदगी में अगर 3 शब्द सीख लो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. तो जो आपने बात कही ना, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, उसने कहा अगर ये 4 शब्द आपने अपनी लाइफ में डाल लिए तो यू कैन बिकम अ मिलियनियर. तो मैंने पूछा कैसे. तो उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री में पेपर डालता था, उससे दोस्ती हुई. उसने मुझसे कहा ठेकेदारी करने लगो. मैं ठेकेदारी करने लगा मिलिट्री में. मुझे आता था तो ठीक है, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, जो जैसा मिलिट्री वाला बोलता था मैं 4 शब्द बोल के आगे बढ़ता गया. अंगूठा छाप थे अंकल. और उसकी मदद लेके पढ़ते रहे, समझते रहे, करते रहे. और वो 4 शब्द ही उनने हमको बाद में बताया कि अगर तुम ये 4 शब्द सीख लो तो आपको किसी से ईगो नहीं आएगा आगे बीच में और आपको कहीं कुछ वो नहीं आएगा. अगर आपको लगता है तो सॉरी सर बोल दो, नहीं समझ में आया तो थैंक यू सर बोल दो. आपको उससे गिचड़ करना, आप उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है. आपको बिल्कुल नहीं. इग्नोर करो उसको. अगर डांट दिया तो ओके सर, सॉरी सर. Very true. तो ये 4 शब्द जो हैं कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हैं सामने वाले को कूल डाउन और काम डाउन करने के लिए, और जिससे आपकी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ जाती हैं. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ मार्वेलस सेशन मैम. तो स्टूडेंट्स, कुछ लोग मैडम आपकी तारीफ बहुत कर रहे हैं. बच्चे चैट बॉक्स आप देखें तो कुछ कविताओं में लिख रहे हैं, कुछ कहीं कुछ कर रहे हैं. तो मैं अभी अनम्यूट कर देता हूं. कुछ लोगों को अगर पूछना चाहें तो या सेल्फ अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को, पर सब लोग एक साथ ना पूछें, नहीं तो आवाज नहीं आ पाएगी. अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कोई आप पूछना चाहें तो. Yes. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. Yes, बेटा पूछिए. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम कैसे अपने आप को और जगह को कैसे इतना अच्छा करें कि कोई हमें कुछ कहने से पहले 50 बार सोचे कि नहीं ये बोल रहा. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, एक बार फिर से कहिए प्लीज. मैम हाउ टू इम्प्रूव अवर लैंग्वेज. हम लोग इंग्लिश इतनी ज्यादा जानते नहीं है. बेटा चैट बॉक्स पे लिख दीजिए क्वेश्चन आपका जो भी है, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए. मैं आप लोगों के साथ एक सेशन और शेयर करना चाह रहा था. Yes, am I audible? Yes, am I audible? या ओके. देखिए कन्विंस करना बहुत जरूरी है, ये एक कला होती है. देखिए कला के तौर पर कन्विक्शन लाना
आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए हमको थोड़ा टाइम हो गया है, सर को थोड़ा टाइम हो गया है, हम लोग अब जिंदगी में थोड़ा सा आगे आ गए, बट अभी आपके लिए जो स्टेज है यहाँ पर आपका लोगों को कन्विंस करना सीखना एक कला के तौर पर आप इसको लीजिए। कन्विंस करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। यू मस्ट हैव द प्रोडक्ट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस पेन, तो इस पेन की पूरी नॉलेज मेरे पास में होना चाहिए, और वो नॉलेज को अगर मैं एक शब्द में टर्मिनोलॉजी में बांधू तो दैट इज कॉल्ड यूएसपी। यूएसपी दैट मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट। ओके, तो अगर आपको इस पेन का यूनिक सेलिंग पॉइंट पता है, वो चीज आप कॉन्फिडेंटली अपने सामने खड़े हुए ऑडियंस को बता सकते हैं। बट अगर आपके पास में इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, तो आप बात करेंगे तो आप क्या बात करेंगे? सर ये पेन है, सर ये बहुत अच्छा पेन है, सर ये लिखता है। तो वो आपसे बोलेंगे सर मेरा पेन भी लिखता है। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, आपका भी लिखता पेन है, मेरा भी पेन लिखता है, तो फिर मैं क्यों खरीदूं? द सेम वे अगर आप ये बात करें कि आपसे लोग कैसे कन्विंस होंगे, तो बेटा आपका भी यूएसपी है। मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ, आप भी एक प्रोडक्ट हो, मेरा भी एक यूएसपी है, आपका भी एक यूएसपी है। तो वो जो यूएसपी है दैट इज कॉल्ड द इनर स्ट्रेंथ, आपकी अंदरूनी ताकत। आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मैं सर से पहली बार मिल रही हूँ, हम पहली बार मिलते हुए भी इतने एक जेनरोसिटी के साथ में मिल पा रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ जानती हूँ। मैं और वीकनेस को ये अपने फोन लगा। पकड़ रही हूँ। नो, आई डोंट नीड नॉट टू पिच माय वीकनेसेस। तो जब आप बोल रहे हो कि मैं लोगों से मिलने पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर कन्विंस कैसे करूं, तो आप क्या करिए, सारे बच्चे मिल करके एक पेपर पर 2 कॉलम बनाइए। एक तरफ आप अपनी अंदरूनी ताकत लिखिए और दूसरी तरफ आप अपनी अंदरूनी वीकनेस लिखिए। आपकी अंदरूनी ताकत जो होगी ना, वो आपको आप उसे टेम करते हैं, आप उसको ट्रेनिंग देते हैं। वैसे ही आपको अपने अंदर के मन को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, आपको उसको कोच करना पड़ता है। आप अपने अंदर के सेल्फ को खुला छोड़ दोगे तो आपका अंदर का सेल्फ आपको यहाँ वहां कंफ्यूज करेगा, वो आपको अलग तरीके से डाइवर्ट करेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत कॉमनली अभी जो हमारे बहुत ही लेटेस्ट, हमारा एक वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको ये बात का एहसास हो गया था कि उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, समवेयर ही इज लूजिंग द गेम। तो जिस वक्त आपको अपनी स्ट्रेंथ महसूस होना बंद हो जाती है, दैट्स वेयर यू लूज द गेम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बधाई हो कि आप सेजियन हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक ये हम यज्ञ कर रहे हैं, एक हवन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि 400 में से हमने 10 को भी अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो बाकी के 490 बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ मालूम चल जाएगी, वो अपनी वीकनेस जान पाएंगे। ये अपने आप में हारने और जीतने का काम ही नहीं है। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडरशिप में यहाँ जो भी आ गया है ही इज अ विनर, जो भी ब्रांड एम्बेसडर बन गया ही इज अ विनर। सो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पकड़िए, राइट? उसको एक पेपर पे लिखिए। और एक चीज और मैं बोले दे रही हूँ कि रामायण तुलसीदास ने नहीं लिखी होती, तुलसीदास जी ने नहीं लिखी होती, तो हम पापियों ने पढ़ा नहीं होता। आपकी बाइबल, आपकी कुरान नहीं लिखी होती तो आपने भी नहीं पढ़ा होता। कृपया कर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कागज पर लिखने की जहमत उठाएं। इसको दिमाग में ना रखें, क्योंकि दिमाग बहुत शैतानी होता है, जल्दी भूल जाता है। प्लीज पेपर एंड पेन पे अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कोई अगर चाहे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। क्वेश्चंस बहुत हैं और समय की थोड़ी सी कमी है। हमारे नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर रितु श्रीवास्तव वेट कर रही हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा वो है। सर तो आपका एक सेशन मैं फिर से रखूंगा मैम, जब हमारे 100 सेलेक्ट हो जाएंगे तब मैं आपको फिर से कॉल करूंगा एक बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
Thank you very much, ma'am. Thank you. Have a nice day, ma'am. Have a nice day. Now, dear students, अब सेकंड सेशन का टाइम है. मैं डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, डीन स्टूडेंट अफेयर SIRTS को इनवाइट करूंगा कि वो आए और अपना सेशन लें. डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, थैंक यू स्टूडेंट डीन स्टूडेंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल जो है उसकी ग्रुप कन्वेनर भी है मैम. तो आप लोग वैसे बहुत से लोग मैम से जुड़े हुए होंगे पहले से और मैम को बहुत अच्छे से जानते हैं. मैडम, नाउ इट्स ऑन यू. Thank you, Nilesh sir. And a very good evening to all of you. Oh, ma'am. And thank you, Yogita ma'am, for a nice session. और आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद यहाँ जितने बच्चे जुड़े हैं, जो 400 बच्चे जुड़े हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड हैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए SGI के, दे विल बी क्लियर कि ब्रांड एम्बेसडर एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया. मैम ने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हाउ योर एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, नॉट फॉर जस्ट बिकमिंग द ब्रांड एम्बेसडर बट इन टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ये एटीट्यूड आपके लिए बहुत जरूरी होता है, जो मैम ने आपको इतनी अच्छी तरीके से बताया. तो मैम से तो आप बहुत सारी चीजें और आगे भी सुनते रहोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी यहाँ जितने बच्चे जुड़े हैं, जो 400 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं. आप लोग इतने सारे 3000 से ज्यादा बच्चों में से शॉर्ट लिस्ट हुए हो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए. मैं ये सेशन स्टूडेंट्स शुरू करूंगी. आप सबको पता है कि इनक्रेडिबल इंडिया करके अपना एक अभियान है, जिसके आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं PM मोदी, दीपिका पादुकोण इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन, ये आपके इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्यों है इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स. क्योंकि बाहर जब हम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन चारों में अपनी अपनी खूबियां हैं जिससे वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. और आप सभी को मालूम है कि आज मोदी जी ने हमारी कंट्री को जिस स्टेटस पे लाके खड़ा किया है, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने कंट्री के बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर है. और उसकी वजह से आज हमारी कंट्री पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड नोन है. जो पहले कहीं इंडिया को एक वो नहीं मिलता था, स्टेटस नहीं मिलता था, आज उन्होंने वो स्टेटस दिलवाया है इंडिया को. तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप लोग सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हो. और अगर हम ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो बेसिकली अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ मींस अपने में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि आप उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सको. ठीक है, तो यानी अगर मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स कर रही हूँ तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस ब्रांड की क्या खासियत है. जब मैं उसकी खासियत जानूंगी तभी मैं वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में एम्बाइब कर सकूंगी. जब भी मैं अपने ग्रुप के बारे में बाहर बात करूंगी तो मैं बता पाऊंगी कि मेरे ग्रुप में ये सारी चीजें हैं. जैसे मैम ने बोला USP, आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रुप का USP क्या है, तभी तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बन पाओगे. सो बिफोर यू एंडोर्स एनीथिंग, यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर इज एंडोर्सिंग अ प्रोडक्ट. तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए. जैसे मैम ने बताया कि अमिताभ बच्चन पल्स पोलियो अभियान से जुड़ा हुआ है. अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म के बहुत बड़े उससे जुड़ा हुआ है. तो आज उन्होंने उसको क्यों ब्रांड एम्बेसडर रखा? क्योंकि उसमें कुछ खूबियां थी जिसकी वजह से वो ब्रांड एम्बेसडर रहा. आप लोग को ये भी पता होगा कि अमिताभ बच्चन कैडबरी इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर था, लेकिन उसने उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करना छोड़ दिया था जब एक एपिसोड हुआ था जिसमें कैडबरी चॉकलेट के अंदर से वर्म्स निकले थे. तो अगर हमारा प्रोडक्ट खराब है, गड़बड़ है, तो कोई भी जना उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहता. तो आज के सेशन में बेसिकली मैं आपके साथ इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि आप सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो यू शुड नो व्हाट इज सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अपने कितने इंस्टीट्यूट जुड़े हैं, कब कब ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट था, आपको सारी डिटेल्स अपने ग्रुप के बारे में पता होनी चाहिए. तभी तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, आप उसको एंडोर्स करोगे. ठीक है, तो नीलेश सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन, ताकि मैं बच्चों को थोड़ा सा बता सकूं अपने ग्रुप के बारे में और वो भी कॉन्फिडेंटली फिर ब्रांड एम्बेसडर बन के अपने ग्रुप को एंडोर्स कर पाए. मैम यू कैन शेयर द स्क्रीन, आपको को-होस्ट बना दिया मैम. ओके ओके सर. तो स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्मॉल presentation that I have prepared for you. और बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि देखिए मैंने स्टार्ट किया है कि ब्रांड एम्बेसडर्स की डेफिनेशन क्या होती है.
जो मेरे को अब बहुत डिटेल्स में आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैम ने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो बेसिकली दे आर अपॉइंटेड टू promote a particular product, event, mission and thought, and the appeal of the brand ambassador is considered to be more effective in the common people. तो जब आप कॉमन लोगों के संग जुड़ोगे, जब और बच्चों से आप इंटरेक्ट करोगे, तो आपकी अपील अलग होगी ब्रांड एम्बेसडर्स की। और क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आपका वो ब्रांड किस चीज को स्टैंड करता है। ठीक है, तो हम सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। पहले मैंने यहाँ पे दो लोगो आपको दिखाए हैं, एक SIRT का पुराना वाला लोगो है और एक नया लोगो है जो जो अब, क्योंकि SIRT इज नाउ नोन एज द सेज ग्रुप, क्योंकि सेज ग्रुप के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। और कल आपको संजय शर्मा सर ने बहुत सारी चीजें बताई होंगी अपने ग्रुप के बारे में। तो नाउ आवर ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज द सेज ग्रुप। और पहले SIRT जो हमारा है, जिसमें हम हैं सब, SIRT का जो टैग लाइन है वो है वेयर सक्सेस इज अ ट्रेडिशन, और सेज ग्रुप की टैग लाइन है सेज है तो मुमकिन है। और बात भी सही है, हम सब सेजियंस हैं, और अगर सेज है तो मुमकिन है। आपको सबको पता है कि हमारी गाइडिंग फोर्स, हमारी चेयरमैन सर इंजीनियर संजीव अग्रवाल, ही इज द CMD ऑफ सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ही इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ SUB एंड SUI। आपके संग चेयरपर्सन मैम है। जितने लोग सैक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं, उन्होंने सबने देखा हुआ है चेयरपर्सन मैम को, वो सैक में बहुत ज्यादा वो हैं। एंड एज द सेइंग गोज दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो चेयरपर्सन मैम चेयरमैन की बहुत बड़ी सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ जो भी उनको इतना पावर मिलता है वो चेयरपर्सन मैम से। सो शी इज द चेयरपर्सन ऑफ SGI। अब अपने गाइडिंग फोर्स में डॉक्टर प्रशांत जैन सर हैं, ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द ग्रुप एंड ही इज द प्रो चांसलर SUB SUI। और अभी हमारे साथ नई दोनों यंग डायनेमिक लीडर्स जुड़ी हैं, दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वेरी क्लोज टू योर एज, आपसे थोड़ी बड़ी होंगी बट वेरी वेरी डायनेमिक एंड विद सच गुड आइडियाज, मिस शिवानी अग्रवाल एंड मिस साक्षी अग्रवाल। तो इससे हमारे ग्रुप को एक पूरी नई स्ट्रेंथ, न्यू एनर्जी मिली है दोनों मैम से। देन दीज आर द ब्रेन्स बिहाइंड SGI। आप लोग ने सबने कहीं ना कहीं सर लोगों को देखा होगा या इंटरेक्ट किया होगा। तो सबसे पहले डॉक्टर PS राजपूत सर हैं, ही इज द ग्रुप डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स। वी हैव मिस्टर सर्वेश शुक्ला, ही इज द ग्रुप कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जितनी कंपनी आती हैं सब सर के कोऑर्डिनेशन से, काउंसलिंग भी सर देखते हैं, तो एडमिशंस एंड काउंसलिंग के लिए भी सर्वेश सर हैं। जितने भी स्टूडेंट रिलेटेड मैटर्स हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं अपने कॉलेज में, सब राजपूत सर देखते हैं। Then you have Dr. Manish Manoria. He is also the director of SIRT and the group coordinator academics. So आपकी जितनी academic planning होती है, जो भी monitoring होती है academic, जितना academic calendar बनता है, सब मनोरिया सर बनाते हैं। And then Rajiv Shrivastava sir, he is the director of SIRTE and also the group coordinator of digital media. तो आपकी जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है उसके लिए सब पीछे उसके राजीव श्रीवास्तव सर हैं। Then as Sagians, as students of SGI, you should know the vision and mission of your organization. तो सबसे पहले ये तो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको रटा हुआ होना चाहिए अपना विजन और मिशन। आज आप अपने किसी भी फैकल्टी मेंबर को रोक के पूछोगे तो सबको अपना विजन मिशन याद है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रीड आउट कर देती हूँ। विजन जो है वो है टू मोटिवेट एंड मोल्ड वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स who will excel in their disciplines and effectively meet the challenges of the dynamic global scenario. और आपका मिशन है working towards being the best by incorporating the principles of total quality management and adopting IT-based knowledge management to meet global challenges. तो स्टूडेंट्स ये विजन और मिशन प्लीज आप लोग पक्का से देख लेना, याद कर लेना, ये आपकी वेबसाइट पे भी दिया है। आपके ग्रुप को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, बहुत सारा रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो अगर आप देखें तो अपना ग्रुप 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था और 2005 ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड गेटिंग सो मेनी अवार्ड्स, विजयश्री अवार्ड, नागरिक परिषद अवार्ड, इंदिरा गांधी शिरोमणि अवार्ड, शिक्षा भारती पुरस्कार, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अवार्ड ऑफ बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ MP बाय स्टार इंस्टीट्यूट इन 2012, बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला हुआ है हमको, recognition in education field in Central India by Z Media Corporation. Sage University got the Best Engineering University of Central India Award by Shivraj Singh Chauhan in 2017.
Best Institute Award at FMPCCI 4th Outstanding Achievement Award. Again we got the Best Upcoming University Award. वैसे ही इंदौर की यूनिवर्सिटी जो कि अभी 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसको भी हमारे को बहुत सारे अपकमिंग यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया के अवार्ड्स मिल चुके हैं. बिजनेस लीडरशिप अवार्ड मिला हुआ है चेयरमैन सर को. ऑनर वी हैव रिसीव्ड ऑनर फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एमपी मिसेस अर्चना चिटनिस इन द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस एन.के. गुप्ता. हमको उसके बाद आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिल चुका है. आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड में सर को फेलिसिटेट किया गया था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने फेलिसिटेट किया था. तो द लिस्ट गोज ऑन. अभी भी मैंने पूरी लिस्ट आपको नहीं दिखाई है. द लिस्ट ऑफ अवार्ड्स इज अनएंडिंग. सो as you can see that in central India, Sagar Group of Institutions is a well known name. अभी क्या होता है कि हम लोग सब जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, हम कई बार उसकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. बट मैं इस ग्रुप से पिछले 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, और आज मैं भोपाल में किसी को भी बताती हूँ कि मैं सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में SIRT में वर्क करती हूँ, तो कोई भी मुझसे ये नहीं पूछता कि SIRT क्या है, बिकॉज योर ग्रुप इज नोन. इवन आउटसाइड MP, so many people know about SIRT. Since I'm also the admission in charge, मेरे से इंक्वायरीज आती हैं. आउट ऑफ MP भी बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में. ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट में वैसे आपको कल ये सब बातें बताई गई हैं. सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सिस्टर कंसर्न्स भी हैं, जिसमें अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है. मैंने सबके वेबसाइट्स यहाँ पर दिए हैं, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको फिर बाद में स्लाइड्स भी दे दूंगी, सो दैट यू कैन गो थ्रू दी वेबसाइट्स इन डिटेल्स. तो अग्रवाल कंस्ट्रक्शन है, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड भोपाल, 2 यूनिवर्सिटीज हैं अपनी. देन वी हैव अग्रवाल पावर प्राइवेट लिमिटेड. सो वी आर इन दी पावर सेक्टर ऑल्सो. ठीक है, और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं हम पावर सेक्टर में. देन वी हैव 2 schools, one in Ayodhya Nagar, which is in your campus only, which is Sage International School, and the other one is in Danish Kund. तो इन सबके वेबसाइट्स मैंने दिए हुए हैं, इन केस आप लोग कभी डिटेल्स देखना चाहो. और अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो तो देन यू शुड बी गोइंग थ्रू दी वेबसाइट्स ऑफ ऑल दीज सिस्टर कंसर्न्स ऑल्सो. सो लेट अस गो टू दी हिस्ट्री ऑफ SIRT. 2003 में स्टैब्लिश हुआ था SIRT. SIRT-S जो इंस्टीट्यूट है वो 2007 में स्टैब्लिश हुआ. 2009 में. और अपने पास 2 फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स हैं. जो SIRT के पास बिल्डिंग है विच इज SIRT फार्मेसी, वो 2004 में स्टैब्लिश हुआ है. और जो S में बिल्डिंग है S फार्मेसी, वो 2007 में स्टैब्लिश हुआ है. Along with this तीनों इंस्टीट्यूट्स में MBA कोर्सेज भी रन करते हैं. तो SIRT, SIRT-S और SIRT-E में तीनों में MBA प्रोग्राम्स भी चलते हैं. ठीक है. And as you all know, we are affiliated to RGPV Technical University, and MBA program is affiliated to Barkatullah University. तो अपने ग्रुप में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं, और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं. तो मैं आपको ब्रीफली बता दूंगी कि क्या क्या चीजें हैं अपने पास. तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपके पास BTech, B Pharma है. PG प्रोग्राम्स में आपके पास MTech, MCA, MBA और M Pharmacy भी है. तो यू हैव मास्टर्स इन फार्मेसी ऑल्सो. दिस इज योर SIRT. उसका वेबसाइट भी दिया हुआ है. दिस इज द बिल्डिंग ऑफ SIRT. ये तो आप लोग देखते ही रहते हो आते जाते. तो SIRT में हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं BTech प्रोग्राम, उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है. ये स्पेसिफिकली जो बच्चे SIRT-E और S में और फार्मेसी में हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज E और S में ये सारी ब्रांचेस नहीं है, बट SIRT में हमारे पास इतनी सारी ब्रांचेस हैं BTech में, जिसमें से हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो MBA accredited है. देन SIRT में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, MTech कोर्सेज हैं. टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आपके पास कंप्यूटर साइंस में MTech है, डिजिटल कम्युनिकेशन में MTech है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI में है, थर्मल इंजीनियरिंग में है. ठीक है. और हमारे पास SIRT में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का प्रोग्राम भी चलता है, जो सिर्फ SIRT में चलता है. और SIRT में MBA प्रोग्राम भी है. देन SIRT का जो फार्मेसी इंस्टीट्यूट है, उसमें B Pharma और M Pharma दोनों कोर्सेज हैं. जो मास्टर्स का कोर्स है वो फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स में है. सो दिस वाज SIRT. अभी मैं SIRT के और डिटेल्स और USP भी आपको बताऊंगी. पहले हम सारे देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज सारे इंस्टीट्यूट्स में चलते हैं. तो जो दूसरा इंस्टीट्यूट हमारा 2007 में स्टैब्लिश हुआ था, विच इज सागर इंस्टीट्यूट ऑफ
research technology and science, क्योंकि SIRT was a very successful institute, so everybody had asked for a second institute क्योंकि capacity full हो गई थी SIRT की. So S opened in 2007 और SIRTS में currently अभी 3 engineering की branches हैं, computer science, mechanical engineering and civil engineering. और MTech courses हैं हमारे पास जो कि computer science में और civil में structure engineering में है. SIRTS में MBA प्रोग्राम भी चलता है. देन हमारा फार्मेसी इंस्टीट्यूट भी है SIRTS का, जिसमें बी फार्मा, एम फार्मा चलता है. एम फार्मा सिर्फ यहाँ पर लेकिन फार्मास्यूटिक्स में है, ठीक है. एज यू कैन सी इट इज ओनली इन फार्मास्यूटिक्स. देन कम्स द थर्ड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विच ओपनड इन 2009 अगेन ड्यू टू अ हैवी डिमांड. और इसमें भी 3 ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग. और SIRTE में हमारे पास 3 MTech प्रोग्राम्स हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे. और SIRTE में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज MBA भी चलता है. उसके संग संग एडिशनल एक क्वालिटी है SIRTE में कि यहाँ पर डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी चलते हैं. और डिप्लोमा मतलब जो आप 10th क्लास के बाद आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, 3 years के होते हैं. वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं. तो एक बहुत ब्रीफ सा, आप लोगों को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये इनटेक है अपना, और ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि SIRT का इनटेक क्या है और MCA का इनटेक क्या है, MBA का इनटेक क्या है. लेट अस कम टू द प्रोमिनेंट पीपल हु आर देयर इन SIRT. तो डॉक्टर मनीष मनोरिया हैं, ही इज द डायरेक्टर ऑफ SIRT, एंड एज आई टोल्ड यू, he is also looking after the academics of the group. He is the group coordinator academics, and Manoria sir has a long experience, more than 28 years of experience he has, and he has graduated from SATI, done his MTech and PhD from RGPV, and he was working for a long time in SATI for Tuba group of institutions. Finally he joined your group, which is Sagar group of institutions. He was also my teacher in college, so he has taught me also. Then we have Dr. D.K. Mudaya sir. He is the Deputy Director of SIRT. He has 30 plus years of experience, out of which the initial 10-15 years he has spent in a mechanical industry. We have Dr. Nitin Tingoria. He is the HOD of Mechanical Department. Dr. Rajesh Shukla, HOD of Computer Science Department. We have Dr. Jyoti Jain. She is the HOD of EC Department. So these are some of the senior members of Computer Science Department. आप लोग सब मिले होंगे. S और E के जो बच्चे हैं उन लोग देख लें थोड़ा इसमें से, क्योंकि हम लोगों का ट्रांसफर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भी होता है. तो अमरीश सर पहले SIRTS में थे, अब SIRT में हैं. So these are some of the teachers of CAC department, some of the teachers of EC department. Meenal Saxena ma'am is also she was the dean in SIRT, but अभी छुट्टियों में she got transferred and she is currently in SIRTS, and Keshav sir has been transferred to SIRT. तो जो बच्चे जानते हैं मैम को, ma'am is now with me in SIRTS, and together now we are going to work to take SIRTS to new heights. Then this is the electrical department. इसमें Shefali ma'am is the HOD, Neeti ma'am is there, Kaushal Nayak sir. All of you know them. Dr. S.C. Bagaria sir is there. He's a very senior professor in electrical, and he's a retired GM from BHEL. So you have a mix of very good teachers in SIRT and in the whole group, in fact, because I'll be showing you the prominent teachers in every institute. So, and you will see that you have very senior professors in the whole group. So Professor Hitesh Verma, he is the HOD of Civil Engineering Department. Deepak Malviya sir is there. Dr. Shubha Bhargav, Dr. Uma Bhavskar. These are some of the senior professors of Civil Engineering Department, and these are the senior professors of Mechanical Engineering Departments. कहीं ना कहीं सर लोगों ने आपको पढ़ाया होगा. So you all are aware. ये हमारे MBA के बहुत ही famous और renowned सारे teachers हैं. Dr. Rishi Sharma, Dr. Simrina Singh, she is a very very good teacher, very good counselor, very nice lady, very senior member. Professor VP Singh, he is the advisor. Dr. Abhin Bakshi sir भी हैं, अभी currently उनका photograph miss हो गया मुझसे. He is the director of MBA, and he is also quite renowned. Abhi he is right now in Delhi, and he is associated with many organizations as an advisor. Dr. Nidhi Deoskar is there. Dr. Seema Rafiq is there. Then these are some of the prominent alumni. मेरे ख्याल से ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए. इसमें मैं आपको जो चीजें बता पाई, बेसिकली एक विप्लव सहानी है, ये तो वेबसाइट पे पढ़ा है. ही इज एन इंजीनियर इन इंडियन नेवी, alumni of SIRT.
Then we have Mayank Bangle. He is working as assistant engineer in water resources department, Sagar. So 2015 का pass out है. He is also our brand ambassador. Then Archie Jain is there. She is in IBM India Private Limited. And you will see that we have a lot of alumni ambassadors in outside India also. So I have taken a few here. Utkarsh Chaudhary, he passed out in 2013 from SIRTS. Currently, he's in Deloitte, Canada. And Samkit Jain, he's a software developer in American Airlines, again alumni of SIRTS, and right now he's in Dallas, USA. And he passed on in 2013. We have Akash Jawar. He is working in Intel Corp, San Jose, USA. He has done his post graduation also. All three of them have done their post graduations from USA and currently placed in USA and Canada. Then we have Aditi. She is a civil engineer, passed out in 2014 and working as assistant engineer in rural engineering department. There are other prominent alumni also who have cracked IFS and PSC. बहुत सारे हैं. Off and on आप लोगों से हम उनका interaction भी कराते रहेंगे. I am trying to arrange talks for you all from these alumni who are at prominent places कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, how they are representing our group outside India or within India in the country. तो ये सब बहुत अच्छे आपके brand ambassadors हैं. अगर आप हमारे पुरानी टीचर्स के प्रोफाइल देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइमलाइन में इनकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. Then we have two pharmacy institutes here. Pharmacy institutes में SIRT pharmacy है, तो 4 year course होता है और आपको पता है कि PG का 2 year का course होता है. This is the intake. These are the prominent people. Dr. Suren Jain, he is the director of pharmacy, and under him a lot of research projects are going on. Similarly, Dr. R.B. Goswami, again, he is a very senior professor. Dr. Ruchi Jain is again a senior professor. And all of them are having a lot of research proposals under them. उनको grants मिली हुई हैं government of India से और बहुत सारा research work चलता है pharmacy में. SIRTS में ये सारी branches हैं, ये intake है. और SIRTS की कुछ आपको अपने HODs और यहाँ पर director sir हैं, Dr. Vikas S. Page. Many of you know him. He is the director. I think he is very much connected to the students. Myself is there, and Dr. Kalpana Rai, she is the HOD of CSC department. Dr. Pradeep Dwivedi is the HOD of Applied Science department. Vidosh Mahate is the HOD of Mechanical Engineering department, and Dr. Rakesh Patel, HOD of CSC Civil Engineering department. So these are some of the senior faculty. और बहुत बड़ी list है, मैंने बहुत सारे लोगों के नाम include नहीं किए हैं. There are senior teachers like Abhigyan sir, Nilesh Jain sir is there. He is also conducting your ambassador program, क्योंकि फिर वो बहुत सारी slides हो जाती हैं and I know कि patience नहीं रहता इतना सारा आप लोगों को भी देखने का, इसीलिए मैं थोड़ा उसको short रखा है. But lots of prominent, in fact in Central India you have the highest number of PhD in our group. तो ये एक बहुत प्रीमियम पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम PhD प्रोफेसर्स आपके पास हैं. ठीक है, फार्मेसी इंस्टीट्यूट SIRTS में भी है और ये सब प्रोमिनेंट फैकल्टीज हैं. डॉक्टर जितेंद्र बनवीर इज द डायरेक्टर ऑफ SIRTS फार्मेसी. सुखवंत सर इज देयर, आई थिंक ही इज कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स. डॉक्टर नीलेश जैन, डॉक्टर निशी प्रकाश जैन, ही हैज अ लॉट ऑफ पेटेंट्स इन हिज नेम. एंड डॉक्टर नीलेश जैन है, वो भी बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. सुखवंत सर, ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन मल्टी डायमेंशनल है, बहुत एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं. Then you have SIRTE and इसमें ये सारी ब्रांचेस हैं. डिप्लोमा कोर्स है, MBA, MTech, BTech. SIRTE में भावना मैम आप लोग से जुड़ी हुई हैं. डॉक्टर चंद्रभान सर इज देयर, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्टिव और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं. द मोस्ट डायनेमिक एंड ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड SIRTE इज देयर डायरेक्टर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव. डिजिटल मीडिया पे उन्होंने बहुत काम किया है. अपने ग्रुप को की ब्रांडिंग के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की है और सर ने अभी जो सेज ट्रेंड्स नए शुरू किए हैं विच आर वेरी वेरी गुड. एंड देन यू हैव प्रोफेसर संदीप गुप्ता एंड डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी, ही इज दी HOD मैकेनिकल एंड संदीप गुप्ता सर इज HOD सिविल डिपार्टमेंट. सिंस यू आर प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ब्रांड की USP क्या है. तो if I come to the USP part, तो you will see कि हमारे पास we have a well qualified faculty, maximum number of PhDs are there, okay, and then
आपके पास मोर देन 4,500 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, जिसमें मोर देन 1,000 तो स्कोपस इंडेक्स्ड और अच्छे जर्नल्स में हैं। आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो इसलिए आप लोगों को इतना शायद आइडिया नहीं है, बट स्कोपस इंडेक्स्ड एंड स्प्रिंगर में और ये सब जो होते हैं IEEE पब्लिकेशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ अ टीचर। Nearly more than 50 patents have been filed from our group. तो आप लोगों को पता नहीं होता है, बट आपकी फैकल्टीज काम करती रहती हैं, एंड वी हैव फाइल्ड मोर देन 50 patents from our group. SGI has also hosted Smart India Hackathon for 3 consecutive years. तो 3 consecutive years हमने Smart India Hackathon होस्ट करी है। उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे संग इन्वॉल्व भी रहे होंगे उसके ऑर्गेनाइजेशन में। और इस साल हम SUB में इज द सेंटर फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जिसका अभी कल परसों नरसों 3 दिन सॉफ्टवेयर वाला इवेंट होने वाला है। More than 50 books have been published by the faculty of this group. Nearly 50,000 alumni at established positions. तो इतने साल में we have produced more than 50,000 alumni और सब established positions पे हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, you have a world class infrastructure. हम कई बार वैल्यू नहीं करते हैं, बट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। एंड लॉट ऑफ MOU एंड टाई-अप्स वी हैव डन विद गुड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी मैं आपको सबकी वो दिखाऊंगी लोगोस की किस किस के संग हमारा MOU और टाई-अप है। नियरली इन 2019-20 1400 placements have been done from our group, and more than 150 nearly 195 companies visited our campus for placements. So our students are representing at state and national level in basketball, badminton, powerlifting, kho-kho, etc. इन सब में हमने RGPV को भी रिप्रेजेंट किया है। स्टेट लेवल पे हमने नोडल्स खेले हैं, हमने नेशनल लेवल पर भी कई जगहों पर रिप्रेजेंट किया है। अपने स्टूडेंट्स have participated in hackathons, go-karting events, tech fest in IITs and NITs, and Sagar group of institution also focuses on CSR activities. तो अभी जब आप बेटा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाओगे तो you will see that corporate social responsibility, CSR stands for corporate social responsibility. It is a very important part of any organization, and every organization has to mandatorily do CSR activities. और मैंडेटरी क्या, चेयरमैन सर ने और चेयरपर्सन मैम ने मिलके बहुत CSR एक्टिविटीज की हैं, उसके लिए बहुत सारे फंड्स भी एलोकेट किए हैं, और हमने बहुत लोगों को बहुत तरीके से हेल्प किया है ड्यूरिंग दी। और जो बच्चे इसमें CSR क्लब में जुड़े हैं, दे नो दी एक्टिविटीज दैट वी आर परफॉर्मिंग अंडर CSR क्लब। देन MOU टाई-अप्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। एक चीज मैंने स्लाइड में नहीं इंक्लूड की है, मैं आपको ऐसी डिटेल्स दे देती हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। नियरली 19 स्टार्टअप्स are there in our group, जिसमें से बहुत सारे अपने एलुमनाई ने भी किए हैं और कुछ अपने करंट स्टूडेंट्स ने भी किए हैं। जैसे एक ईज एग्जाम करके हमारा पोर्टल बना है, जैसे कोक्यूब्स का पोर्टल है, वैसा इलेक्ट्रिकल के बच्चों ने SIRT के एक स्टार्टअप शुरू किया है। देन फरिश्ते ड्राइवर्स फॉर यू, मुदित तिवारी करके है IT में, उसका चलता है। स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट इज देयर। देन देयर वाज अ स्टूडेंट आशीष मिश्रा, जिसने जो बीनेस्ट के उसमें उसको स्टार्टअप मिला था। तो ऐसे बहुत सारे नियरली हमारे पास 19 स्टार्टअप्स हैं जो अपने बच्चों ने किए हैं आपके एलुमनाई में, और कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको डिटेल्स भी दूंगी उन स्टार्टअप्स के। और जो फैसिलिटीज आपका ग्रुप ऑफर करता है, अगर आप किसी को बताओगे तो हमारे पास स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, हमारे पास हॉस्टल्स हैं बॉयज और गर्ल्स के, बस फैसिलिटी है, बस ऑल ओवर भोपाल इंक्लूडिंग विदिशा, सीहोर, सब जगह हमारी बस जाती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अपना बहुत अच्छा, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। 195 कंपनीज अगर एक साल में विजिट कर रही हैं, देन आवर प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वी रन वैल्यू एडिशन कोर्सेज एंड स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग। तो वैल्यू एडिशन कोर्सेज के बारे में आपको पता ही है, स्किल एनहांसमेंट भी हम बहुत सारा रन करते हैं। जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में आपकी इतनी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है आपकी। I have also attended some of the sessions and they were quite good. Then सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है उसका फोकस है कि स्टूडेंट्स शुड हैव अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी। एक वन डायमेंशनल पर्सनालिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वेल राउंडेड पर्सनालिटी चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है।
और जिसको मैं ही देखती हूँ और जो बच्चे मेरे संग जुड़े हैं उनको पता है कि उसमें बहुत सारे क्लब्स हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनको सबको प्लीज पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्लब्स हैं। तो मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ लिस्ट। वी हैव अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब जिसको हम उत्कर्ष के नाम से बुलाते हैं। डांस एंड ड्रामेटिक्स क्लब है जो मंचन के नाम से जाना जाता है। म्यूजिक क्लब है जिसका नाम तरंग है। आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है जिसका नाम कल्पना है। स्पोर्ट्स क्लब है अर्जुन। एकेडमिक बूस्टर क्लब शिखर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब खुशी। फोटोग्राफी क्लब छाया चित्र। और हमारे पास एक सेल है विच इज नोन एज इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो जितनी आपकी इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, जो वॉलंटियर्स रहते हैं, वो सब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के होते हैं। बॉयज हॉस्टल है आपके पास, गर्ल्स हॉस्टल है, बस फैसिलिटी है। दिस इज योर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स SIRT के ग्राउंड में है, सबने देखा होगा। इसके अंदर आपका बहुत बड़ा बैडमिंटन कोर्ट है जिसमें हमने भी नोडल्स भी करवाए थे RGPV के। आपका जिम की फैसिलिटी है। These are some of the companies जो प्लेसमेंट के लिए हम जिन्होंने हमारे संग टाई अप किया है। एंड एज यू कैन सी यू हैव सॉफ्टवेयर कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज जो MBA ब्रांच के लिए आती हैं, जो मैकेनिकल सिविल के लिए आती हैं। तो these are some of the companies which have visited our campus. Then these are the companies जिनके संग हमारे टाई अप्स हैं। रेड हैट है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेजनेट, नेटलिंक, इन सब के संग हमारे टाई अप्स हैं। तो ये आपको बहुत सारे इवन प्लेसमेंट के लिए टाई अप्स होते हैं और भी ट्रेनिंग्स वगैरह में ये लोग सब हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली इन शॉर्ट अबाउट योर ग्रुप एंड आई होप मैं इससे आप लोगों को काफी सारी चीजें पता चली होंगी। और सर मेरे ख्याल से आप स्क्रीन शेयरिंग तो बंद कर दें तो मुझे थोड़ा सा। ओके मैम जी। हाँ हाँ आपको बंद आपके पास ओके शेयर कर दिया सर मैंने। ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ब्रांड के आप ब्रांड एम्बेसडर करने जा रहे हो उसके बारे में काफी आइडिया क्या होगा और काफी सारी चीजें जो आपको जैसे बहुत सारे बच्चों को यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी है उसमें गेंद आपको सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से उन लोगों को भी चीजें अपने ग्रुप के बारे में नहीं पता होंगी कि आपके में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, आपके टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि अगर हम किसी भी ब्रांड के एम्बेसडर